दोस्तों मैं कंट्रोल सिस्टम्स का रिवीजन पैक करा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंट्रोल सिस्टम मीन्स अ सिस्टम विद अ प्रोविजन फॉर कंट्रोलिंग द रिस्पॉन्स। ये आंसर होगा। इट कैन नॉट बी एनी सिस्टम, अ सिस्टम विच इज हैविंग अ कंट्रोल्ड इनपुट और सिस्टम हैविंग जीरो एरर. It should not be like this. It is a system with a provision which has the power or capability to control the response. Response is the output. Okay, so uh, it you can also say that a control system is a device that manages and commands. That manages and commands means instructions. That manages and commands, direct or regulates the behavior of other devices or systems to achieve the desired result. Okay, so uh, this you should be knowing. Now next question is, which of the following methods is the strongest tool to determine the stability and the transient response of the system? Routh-Horvitz criteria, no. Bode plot, no. Nyquist plot, no. It is the root locus plot. Root locus. How? The root locus is the strongest tool for determining stability and where there is a transient response of the system, as it gives the exact pole zero location. Exact pole zero location. Okay, and also their effect on the response. Bode plot is what? It is a useful tool that shows the gain and phase response, right? And also their effect nahi, of a given LTI system at different frequencies for different frequencies. Nyquist plot क्या है? In addition to providing the absolute stability, it also gives information of relative stability. That means the absolute stability and relative stability दोनों देता है. Routh-Horvitz criteria is used to find the range of gain. ये क्या करता है? It is used to find the range of gain for stability and gives information regarding the location of poles. Poles की location बताता है, ठीक है? Next question है आपका. Routh-Horvitz criteria is used to determine peak response, time response, absolute stability or roots of characteristic equation graphically. Routh-Horvitz criteria is used to determine the absolute stability of the system. ठीक है? The stability information can be maintained without the need to solve the closed loop system poles. हम इसमें क्या करते हैं? We just calculate the number of poles in the LHS or RHS on the imaginary axis. It is used to determine the absolute stability of the system. ठीक है. अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स, दैट मीन्स HT फॉर द सिस्टम इंडिकेटेड बिलो. देखिए फॉर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिस इज अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो इसका फॉर्मूला क्या है? GS अपॉन 1 प्लस GS HS. तो गिवन GS क्या है आपका? दिस इज योर 1 बाई TS. HS क्या है आपका? इट इज़ 1. ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे 1 बाई TS बाई 1 प्लस 1 अपॉन TS. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस ST. ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? इनवर्स लाप्लास ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. इट इज़ द L इनवर्स ऑफ HS. यही होगा ना? तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या आ रहा है? दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन, दैट मीन्स CS अपॉन RS, आउटपुट अपॉन इनपुट. So it will be equal to what? L inverse into ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप 1 अपॉन T कॉमन ले लीजिए तो S प्लस 1 अपॉन T. सो हम इसी का क्या कर रहे हैं? लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं. तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन T E माइनस T अपॉन कैपिटल T. तो E माइनस T अपॉन कैपिटल T, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, An RC network has a transfer function like this way. The network could be used as. अब कैसे लिखेंगे? देखिए हमें जो दिया हुआ है इसमें पोल्स क्या हैं, आप पहले इसका सॉल्व कीजिए. S² प्लस 4S प्लस 6S प्लस 24. पहले तो मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ. S² प्लस this will be S of S plus 4 and this will be 6 of S plus 4. So this is equal to S plus 4, this is S plus 6. Now denominator करना है, so this will be S² plus ये कितना हो जाएगा? 8S plus 2S plus 16.
So this will be equal to s plus 2 and this will be equal to s plus 8. So आपके पास जो पोल्स आ गए वो क्या हैं, आप इसको लिख सकते हो s plus 4 s plus 6 अपॉन s plus 2 s plus 8. तो ये क्या है, आपके नंबर ऑफ जीरोज हैं और ये क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं, राइट. अब इसको जब मैं इसका लोकेट करूँगी, व्हेन आई विल बी गोइंग, व्हेन आई एम गोइंग टू लोकेट द पोल्स लोकेशन हेयर, तो दिस इज व्हाट सिग्मा एंड दिस इज व्हाट जे ओमेगा. तो यहाँ पे आप देखो ये कितना हो गया, ये -2 हो गया, यहाँ पे -8 हो गया, यहाँ पे आपका -4 हो गया, ये -6 हो गया. तो इट मीन्स कि सिस्टम लैग लीड कंपनसेटर है. क्यों लैग सिस्टम, देखो लैग में क्या होता है, पोल इज नियरर टू द ओरिजिन, ठीक है, ये लैग में होता है, ठीक है. और जो आपका ये लीड होता है, इसमें जीरो जो होता है, लीड में जीरो इज नियरर टू द ओरिजिन, इसमें पोल जो होता है इट इज नियरर टू द ओरिजिन. और लैग लीड में लैग सिस्टम डोमिनेंट होता है, लैग सिस्टम नियरर टू द ओरिजिन होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लैग लीड कंपनसेटर है. व्हाट इज दिस, ये लैग लीड कंपनसेटर है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द टाइम इन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, दिस इज LTIS, whose input RT, this is input and the output are related by following differential equation. ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है it is defined as the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input variable by assuming initial conditions equal to 0. तो हमें यूनिट इम्पल्स बोल रहा है, तो यूनिट इम्पल्स इनपुट क्या है आपका, डेल्टा टी, ठीक है. तो जब मैं इसका लाप्लास निकालूंगी तो इट विल बी डेल्टा एस इक्वल टू 1. ये आपका इनपुट है, आर टी इनपुट है, तो मैं इसको जब लाप्लास लूंगी तो ये होगा. अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे आपने ये किया, मैं इसका लाप्लास लूंगी तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर वाई एस प्लस 4 वाई एस एंड इज इक्वल टू 6 आर एस, यही होगा. तो आप देखो आउटपुट अपॉन इनपुट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. तो पोल्स क्या है, दीज आर द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इन द ट्रांसफर फंक्शन. तो एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 4, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस J2. तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इट विल बी प्लस 2J माइनस 2J. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया है आपको, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया है, फोर्थ ऑप्शन इसी में से आंसर निकल जाएगा, सो डोंट गेट वरीड. देखिए जो आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स STM बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज L इनवर्स ऑफ SI माइनस A, इसका डिटर्मिनेंट होता है ये L इनवर्स ऑफ SI माइनस A का होल इनवर्स. तो ये जो हो जाएगा e टू द पावर AT, दैट मीन्स इट विल बी STM, राइट. तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की कैपेबिलिटी जो आप इसमें लिखोगे, ये आपको स्टेट मॉडल दिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज A, दिस इज B, ओके. तो पहले तो मैं SI माइनस A लिखूंगी, ठीक है. तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दिस इज SS 0 0, राइट. एंड दिस इज व्हाट, A क्या है 0 1 -2 -3. तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा S, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ S प्लस 3, ठीक है. अब यहाँ पे देखो SI माइनस A इनवर्स इज इक्वल टू, आप कैसे लिखोगे, 1 अपॉन S ऑफ S प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, ये लिखोगे. और फिर इसमें आप क्या लिखोगे, इसका A इनवर्स क्या होता है बताइए, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट है, यही होता है ना. तो अब इसमें आप देखो ये वैल्यू निकालो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप साइन चेंज करोगे तो S प्लस 3, दिस इज S, दिस इज व्हाट, हम साइन चेंज कर रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस 1, केवल ये दो साइड्स चेंज होती हैं इनवर्स में, तो ये +1 हो गया और ये -2 हो गया, ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो ना, इसमें ये मैं S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 2 है, मुझे इसको करना है S स्क्वायर प्लस S प्लस 2S प्लस 2, तो S ऑफ S प्लस 1 प्लस 2 ऑफ S प्लस 1, तो S प्लस 1 S प्लस 2, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट में. तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये होगा आपका
s plus 3 by denominator plus 1 by denominator minus 2 by denominator and s by denominator. What is the denominator here? Denominator is 1 by s plus 1 s plus 2, 1 by s plus 1 s plus 2. अब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करिए. जब पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, इनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा, मैं आज आपको ये नहीं बता रहा हूँ, जस्ट कैलकुलेटेड, इसका जो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन होगा. राइट, थर्ड ऑप्शन होगा. मैं एक बता देती हूँ, जैसे आपका ये है s प्लस 3 बाय एस प्लस 1 एस प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई एस प्लस 1 प्लस b बाय एस प्लस 2. अब इसमें मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी? लिमिट s टेंड्स टू माइनस 1 s प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 बाय एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2. ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे s प्लस 3 बाय एस प्लस 2 ये a की वैल्यू है. तो यहाँ पे ये माइनस 1 रखिए, तो इस विल बी माइनस 1 प्लस 3 2, माइनस 1 प्लस 2 1. तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई. b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू होगी लिमिट s टेंड्स टू माइनस 2 एंड दिस विल बी व्हाट? s प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 बाय एस प्लस 1 एस प्लस 2. ये मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस टू रखो s की वैल्यू, माइनस 2 प्लस 3 इज 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1. तो b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1. तो यहाँ पे जो आपका ये जो आया a की वैल्यू, यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ, a की वैल्यू कितनी आई आपकी? a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है माइनस 1. तो a की वैल्यू है 2 बाय एस प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाय एस प्लस 2. तो इसका जब हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? इट विल बी 2 e माइनस टी माइनस 1 e माइनस 2t. तो ये हो जाएगा आपका, देखिए थर्ड ऑप्शन में इसकी वैल्यू यही आ रही है ना, 2e2t माइनस 2e2t, यही आ रहा है क्या? 2e2t माइनस 1 e माइनस 2t, 2et, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना. ये कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार आप चेक कर लो. तो इसमें फर्स्ट यू हैव टू टेक आउट द पार्शियल फ्रैक्शन. इसका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा. मैंने एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ. जैसे s प्लस 3 है एंड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 2 है, तो a बाई एस प्लस 1 प्लस b बाई एस प्लस 2 हो गया. तो a की वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू माइनस 1 हो गया. तो यहाँ पे s प्लस 3 बाई एस प्लस 2 है, तो a की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो माइनस 1 प्लस 3 इज 2 एंड ये माइनस 1 प्लस 2 इज 1. तो a की वैल्यू तो 2 आ रही है ना, और b की वैल्यू s प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 बाय, तो इसमें माइनस 1 प्लस 3, सॉरी माइनस 1 है, इसकी वैल्यू माइनस 1 रखोगे आप. ये नहीं, s की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 इज 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1. तो ये माइनस 1 आ रही है. ये आप चेक कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है. तो आपको केवल क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है, और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शंस लेने हैं, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू. तो आपका वैसे थर्ड ऑप्शन सही है, आप एक बार चेक कर लेना. इतना टाइम नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेंदी भी हो जाएगा नहीं तो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोल्स एंड जीरोज ऑफ नेटवर्क फंक्शन. देखिए, the total number of poles is equal to the total number of zeros in a rational network function. Yes, this is true. The poles and zeros of a network function determine the magnitude of response. True. The poles of a network function determine the waveform of the time variation of response. True. ठीक है. Magnitude of response always depend on the number of poles and zeros position of transfer function. तो denominator function जो होता है determines the characteristic of the system. ठीक है. इट इज़ द पोजिशन ऑफ पोल्स दैट डिटरमाइन द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. तो ये जो है आप कह सकते हो कि पोल्स, किसी भी नेटवर्क फंक्शन के जो पोल्स होते हैं, दे डिटरमाइन द वेव फॉर्म ऑफ टाइम वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स. ठीक है. आपने देखा होगा, तो इसमें जो है यहाँ पे कोई भी नेटवर्क फंक्शन हम किसी भी रेशनल फंक्शन का डिफाइन करते हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर जीएस, राइट. तो जहाँ पे जो प्रॉपर जीएस होता है, इट इज अ डिग्री ऑफ एनएस लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डीएस. ठीक है,
ठीक है, तो ये होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द पोल्स एंड जीरोस पोजीशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, नहीं सॉरी फोर्थ है, ये है ए बी सी, तो इसमें तीनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द साइंड फ्लो ग्राफ इज। देखो ये तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं, पहले तो आप निकालेंगे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं आपके, देखो ये पूरा एक ही जा रहा है और सारे बैकवर्ड लूप्स हैं, तो ये 1 होगा, दैट मीन्स ये G1 G2 होगा। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ गेन निकालो, फॉरवर्ड पाथ गेन निकालो, तो इसमें ये हो जाएगा आपका बताया मैंने G1 G2 ही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स निकालो आप, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स निकालो, तो वो कितने होंगे, एक तो ये लूप होगा 1 और एक ये लूप होगा 2, तो आपके पास 2 इंडिविजुअल लूप्स हैं। कौन कौन से हैं, G1 G2 H1 एंड माइनस G2 H2। ठीक है, अब आप इसमें देखो नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग, नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग जो लूप गेन्स हैं, नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, वो तो 0 होगा। और जो डिटर्मिनेंट होगा आपका, डिटर्मिनेंट दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस जो आपका लूप है L1 प्लस L2, वो कितना हो जाएगा, G1 G2 H1 एंड प्लस G2 H2, 1 माइनस G1 G2 H1 माइनस G2 H2 हो जाएगा, और जो डेल्टा आई है दिस इज इक्वल टू 1। तो ट्रांसफर फंक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, देखो आपको मेजन्स गेन फॉर्मूला होता है, मेजन्स गेन फॉर्मूला में क्या होता है, T इज इक्वल टू CS अपॉन RS होता है, राइट। दिस इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू n PI डेल्टा I अपॉन डेल्टा, ये पता है, CS आउटपुट नोड, RS इनपुट नोड, T इज द ट्रांसफर फंक्शन और गेन होता है, ठीक है, इट इज द गेन बिटवीन RS एंड CS। ठीक है, तो PI जो होता है ये ith फॉरवर्ड पाथ होता है, ये ith फॉरवर्ड पाथ गेन होता है। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है आपको पता होगा, डेल्टा होता है, मैंने आपको बताया भी था, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल 2 नॉन टचिंग लूप्स, जैसे L1 L3 हो गया प्लस L1 L2 हो गया, जो भी नॉन टचिंग लूप्स होंगे, नॉन टचिंग लूप्स जो होंगे, ठीक है, एंड प्लस माइनस आप कह सकते हो, माइनस आप कह सकते हो सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल 3, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स, ओके, ऑफ ऑल पॉसिबल 3 नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, और डेल्टा ई कैसे मिलता है आपको, डेल्टा ई इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग डेल्टा फ्रॉम द लूप्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा G1 G2 जो आपका फॉरवर्ड पाथ था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 एंड प्लस G2 H2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। अभी हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट लोकस ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग द रियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मैं काफ़ी आपको कंट्रोल सिस्टम की पूरी रिवीज MCQs कराए हैं मैंने टेस्ट सीरीज में, ठीक है, सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट में। इसमें देखो आपको पहले क्या निकालना है, GS निकालना होता है। ठीक है, आपके पास इक्वेशन ये है, s² प्लस 6KS प्लस 2S प्लस 5 इक्वल टू 0। तो GS कितना हो जाएगा, 6KS डिवाइडेड बाय s² प्लस 2S प्लस 5। तो the point at which root locus enter real axis, the point at which root locus enter real axis, वो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए देखिए ये हो जाएगा आपका dk बाय ds इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अगर आप यहाँ से निकालें फर्स्ट इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या वैल्यू होगी बताइए, इट विल बी
माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6s। तो डी के बाय डी एस दिस इज इक्वल टू वॉट, आप इसमें निकालिए, हमें डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो 6s का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 6s ट्वाइस s प्लस 2 एंड प्लस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 एंड इंटू इसको हम क्या बोलेंगे 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन डी के बाई डी एस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 12s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 6s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 6s। ठीक है, जब आप निकालोगे तो ये 12s प्लस 12s 24s प्लस 6s 30s हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 था। मैं इसको साइड चेंज कर देती हूँ, तो 12s स्क्वायर प्लस दिस विल बी, नहीं ये हो जाएगा सॉरी माइनस 6s स्क्वायर, तो माइनस 6s स्क्वायर प्लस 30s इक्वल टू 0। ठीक है, तो s कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, नहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6s स्क्वायर इज इक्वल टू 30s, s इज इक्वल टू 5 आ रहा है मेरा, तो इट शुड नॉट बी 5। माइनस 12s स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 12s स्क्वायर माइनस, सॉरी इससे गलती हो गई थी, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास आएगा, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, माइनस 12s स्क्वायर एंड देन ये आपका माइनस 6s स्क्वायर हो जाएगा एंड देन प्लस 6s, यस माइनस 6s स्क्वायर एंड यहाँ पे एक मिनट, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 6s स्क्वायर प्लस 12s, 6s स्क्वायर प्लस 12s ये 30 है ऑलरेडी, तो माइनस 6s स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 0। तो s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर माइनस 30, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका माइनस 5, तो s इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे ब्रेक इन पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन रूट लोकस प्लॉट, तो ये प्लस माइनस रूट 5 आएगा, यानी कि प्लस माइनस रूट 5 आएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे जब आप इसमें इसका रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे ये -1 है, तो ये पोल्स जा रहे थे ना, तो ऐसे करके यहाँ पे ब्रेक इन पॉइंट मतलब ऐसे मीट करेगा, तो ये और ये अंडर रूट 5 हो गया। ठीक है, तो s इज इक्वल टू माइनस रूट 5, तो आपका एक तरह से बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।